Now today let's start with chapter number first, components of food. In this chapter, I will tell you about what is nutrients, balanced diet, malnutrition and deficiency diseases. So let's start with the chapter now. First is nutrients. What are nutrients? They are the daily diets which consist of different chemical substances required by a body and these chemical substances are called nutrients. और ये जो chemical substances होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? Nutrients बोलते हैं, right? Nutrients are chemicals that are found in the food that are essential. जो बहुत ज़रूरी होते हैं human growth के लिए और function के. What are the four major nutrients? That is carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Right? So all these functions target different body parts together. They ensure the state of overhead. Food also contain dietary fibers and water that are needed by our body. जो भी हमारी body को जिसकी need होती है वो dietary fibers भी यहाँ पे available है. Then we have carbohydrates. These are the compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen. Right? They provide mainly energy to our body. Food containing carbohydrates, what we call them, जो भी फूड है, फूड आइटम है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. सो लाइक वी हैव राइस, व्हीट, बनाना, शुगर. दीज ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. द मेन फूड दैट आर फाउंड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वो स्टार्च के, शुगर के और सेलुलोज के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है. सो फर्स्ट इज स्टार विच इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो किसमें ब्रेक डाउन होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसा आपका ग्लूकोज हो गया, राइट. नेक्स्ट इज वी हैव शुगर. सो शुगर इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो थोड़ा स्वीट होता है, मीठा होता है. ठीक है. इन नेचर इट इज फाउंड इन ग्रेप जूस. कॉमन शुगर्स आर सुरकोज, केन शुगर, ग्लूकोज, ग्रेप्स, लैक्टोज. ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज. जो क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. ये ऑक्सीडाइज करता है. व्हाट इट ऑक्सीडाइज? इट्स ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग respiration. So, well, it's an activity. You can read itself. And the method is also given. Next is your cellulose. So, cellulose, it is a cell wall material. ये एक cell wall material है that cannot be digested by human. It provide roughage in the diet and ये बहुत ज़्यादा important है, बहुत important fiber है हमारी diet में. जो क्या करता है? It refers to as roughage. Then what are the function? It's the chief energy providers. It also constituents of bloody tissue, body tissue. और ये क्या प्रोवाइड करता है? रफेज इन द डाइट. जो भी डाइट आप ले रहे हो उसमें जो रफेज की नीड होती है वो आपका कौन फुलफिल करता है? दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट इज फैट. सो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट टू प्रोवाइड एनर्जी, दे आर कंसिडर एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. ये आपका एनर्जी देते हैं और ये ज्यादा एनर्जी देते हैं हमें एज कंपेयर टू सेम कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. इनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. लाइक वी हैव बटर, एग, मीट, cheese. What are its function? They are chief energy stores of the body which form an important source of energy during starvation. Right? और at the time of energy. ये एक फैट जो है एक important role play करते हैं in absorption of fat soluble vitamins like vitamin A, D, E and K. Now, how to test a food for fat? So what you will need, different items here are given, what you need and method is given to you. It's such a activity, simple activity, you can read it and you will understand yourself. Right? Next is your protein. It is the main building material of cell. ये मेल building material होते हैं body के अंदर, है ना. They play a variety of important role और ये किसके लिए essential होते हैं? जो आपका structure और function जो होते हैं life form उनको form कर. ये आपको energy देते हैं but not as much as carbohydrate. Then protein, they are vital for growth and repair. और जिनका फंक्शन है वो एंडलेस है. ये क्या करते हैं? जो आपकी बॉडी में सेल्स हमको रिपेयर करते हैं, उनकी ग्रोथ करता है एंड दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, मीट, एग एंड फिश. नेक्स्ट इज, अगर आपको डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में प्रोटीन की तो कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में डेवलप होते हैं. जैसे आप देखेंगे कि आपको बहुत फिटिक फील होगा, थकान फील हुई, इंसुलिन रेजिस्टेंट हेयर लॉस होगी, राइट. लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, जो हेयर है वो ब्लैक बिकम रेडिश. लॉस ऑफ मसल मास, जो आपका मसल मास है वो लॉस होता है, राइट. ये वो सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी है जो आपके फेटल भी हो जाती है. नाउ इट्स एन एक्टिविटी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फूड. आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है या सॉरी प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं?
right? And activity is given, you can take water, solution of sulfate like this, and you can test it. Next is vitamins. So let's study about the vitamins, which is very essential for the health and functioning of the body. ये हमारी बॉडी में जो दम डिसीज हो जाते हैं उनसे लड़ते हैं, ठीक है, उनसे फाइट करते हैं, एंड इट कीप्स आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। दैट और डिफरेंट काइंड, इनको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, डी, ई एंड के। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ विटामिन। सो वी हैव विटामिन ए, वो आपको पपाया में, राइप येलो फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, योर कैरेट्स, पम्पकिन, स्क्वाश, स्पैनिश, लिवर, इसमें देखने को मिलते हैं। If we talk about vitamin B, they are found in brown rice, vegetables, potatoes, chicken, liver, and eggs. If we talk about vitamin C, they are found in citrus fruits like you have oranges, lemons, and tomatoes. Next is vitamin D, वो आपको fish, egg, liver और mushroom में देखने को मिलता है. Now vitamin E, green leafy vegetable, whole grain. Vitamin K, green leafy vegetables such as spinach and egg yolk. Right? Then we have minerals. So we can say that minerals are needed by our body in small amount. बहुत कम amount में हमें देखने को मिलता है. Like you can say that your carbohydrates, fats and protein, what are they? They are carbon compounds or organic compounds. ठीक है, ये मिनरल्स जो होते हैं वो ये आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करते, दे डू नॉट सप्लाई एनर्जी टू यू, बट यू कैन सी दैट जब फॉर्मेशन हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की, मतलब क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की, या जो फंक्शनिंग है मसल्स की, नर्व्स की, थायराइड ग्लैंड की, वो आपकी कम हो जाती है। इससे क्या बताया, आपकी बॉडी में क्या है, मिनरल डेफिशिएंसी है। नाउ रफेज, अनडाइजेस्टेबल फाइबरस मटेरियल जो आपका प्रेजेंट होता है फूड में, उसको हम रफेज कहते हैं। सेल्यूलोज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड कनेक्टिव टिश्यू इन मीट एंड फिश, right? They all are the roughage, and main sources of roughage in human body are vegetable, fruits, right? You find it in cabbage, corns, इसमें आपको देखने को मिलता है, right? Then we have water, which is essential part of all living things. Human body is about 70% water, which is taken in directly by drinking. ठीक है, directly आप इसको ले लेते हो, या drinking और indirectly as a part of food. So what happen, जो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन से दैट वाटर जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी बॉडी के सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स. सो वी कैन से दैट वाटर कॉन्स्टिट्यूट लिक्विड पार्ट, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं. लाइफ प्रोसेस कैन नॉट अगर विदाउट वाटर. सो वाटर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे सर्वाइवल के लिए, और ये क्रिटिकल भी है. वाई? बिकॉज it assists in the regulation of nerve impulse. Now balanced diet, it is a diet which contain proper amount of nutrients. इस diet में आपके proper amount of nutrient present है, वो balanced diet होती है. A balanced diet is related to the state of one's age, health and occupation. A balanced diet should have following qualities, that it should be rich in essential nutrients like we have minerals and vitamins. It should provide enough raw matter needed for the growth, development, repair and replacement of the body tissue. इट प्रोवाइड राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. जितनी आपकी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट की नीड होती है उतनी ये आपको अलाउ करती है. देन वी हैव माल न्यूट्रिशन. इट इज अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर्स टू बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन. इंडिविजुअल जो होते हैं वो माल नरिश्ड होते हैं और वो सफर करते हैं अंडर न्यूट्रिशन से. So if that diet does not provide them with adequate calories and protein for maintenance and growth, for they cannot fully utilize their food and eat due to illness. So people are malnourished or suffer from overnutrition if they consume too many calories. अगर वो ज़्यादा calories consume कर रहे हैं, वो भी दे दी. So it is defined as the sufficient, excessive and imbalanced consumption of nutrients. So let's study about the deficiency disease. We have so many deficiency in our body of different things. So from that we have some deficiency disease. So disease that are caused, किसकी वजह से होती है? Lack of nutrients. अगर जो nutrients आपकी डाइट में अवेलेबल होने चाहिए और वो आपकी डाइट में अवेलेबल नहीं है, so there will be a deficiency disease in your body. So let's study carbohydrate deficiency disease as well as protein cause deficiency called marasmus, and it is a severe form of malnutrition. इसमें क्या होता है, क्रॉनिक वेस्टिंग होती है, जो फैट होता है, मसल्स होता है, टिश्यू होता है बॉडी में,
राइट. अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, जो बच्चा इस डिजीज से, जिसको ये डेफिशिएंसी डिजीज होती है, वो बहुत ज्यादा थिन होता है, पेल होता है, उसका रंग जो होता है पीला पड़ जाता है. नाउ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज. So we can say that deficiency of protein affect children, particularly when they are put on a starchy diet. उनको ज्यादा प्रोटीन नहीं मिलता, इसको हम क्वाइश स्कोर कहते हैं. ठीक है, इट्स लिटरली मीन्स नेग्लेक्टेड. जिस चाइल्ड का हम ध्यान नहीं देते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं. इट इज अ डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन. जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, जवाब पे होता है, राइट. सो इफ अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम क्वाइश स्कोर, व्हाट सिम्टम्स विल इट हैव? एक तो क्या होगा, आपकी स्किन का, हेयर का, टेक्सचर का जो कलर है वो चेंज होगा. बॉडी का जो वेट है वो लूज हो जाएगा. जो आपके फीट है, वाटर रिटेंशन की वजह से क्या हो जाएंगे, सूज जाएंगे, इरिटेशन होगी, कंप्राइज इम्यून सिस्टम होगा. और फेलियर, जो गेन का, जो मसल, जो आप मसल मास गेन कर रहे हो उसका फेलियर हो जाएगा. फैटीग, इनलार्ज लिवर एंड डायरिया. सो लेट्स स्टडी अबाउट विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी. So, vitamin deficiency it is cause of many diseases and complications. Every vitamin has limitation to be absorbed as well as minimum requirement for balanced nutrition. Like if you have vitamin C deficiency, you will have a scurvy, which is ascorbic acid. We say it ascorbic acid. What are its symptoms? आपके जो gums है वो bleed करने लगेंगी, right? And teeth जो है वो लूज करने लगेंगे. मस्कुलर एंड जॉइंट पेन होगा. आपको जर्नल वीकनेस होगी, वेट का लॉस होगा और पुअर हीलिंग पावर, मतलब जल्दी से ठीक नहीं हो पाओगे. ठीक है, जैसे हमारी किसी से की बॉडी ऐसी होती है, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम जल्दी से हील नहीं कर पाते. सो हो सकता है कि आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है. आप इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल भी कर सकते हैं, राइट. इफ यू टेक सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन, ऑरेंज, टमाटो, कैबेज, लीफी वेजिटेबल्स, because they contain vitamin C, and also you can take vitamin C tablets. Now vitamin D deficiency, इस समय रिकेट्स हो जाती है. आपने बच्चे देखे होंगे, उनके पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, like this, they are suffering from rickets. So rickets is a disease caused by deficiency of vitamin, calcium and phosphorus. ठीक है, जो कैल्शियम एंड phosphorus हैं, they form the bones at deep. However, absorption of these minerals can take place only in presence of vitamin D. और इसको हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, विच इज फॉर्म बाय द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. चिल्ड्रंस हु हैव इनफ कैल्शियम, जिसकी बॉडी में ज्यादा कैल्शियम होता है, ज्यादा फॉस्फेरस होता है, दे डू नॉट एक्सपोज टू सनलाइट. अगर वो सनलाइट में नहीं जा रहे तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है. सिम्टम्स क्या होंगे, बोन सॉफ्ट हो जाएंगी, दैट बेंड एंड रिकर ईदर नॉक नीज बो लेग्स इफ द चेस्ट बोन्स आर इफेक्टेड. एक आपको पिजन चेस्ट हो जाती है. क्या हो जाती है, पिजन चेस्ट बन जाती है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यू कैन टेक कॉड लिवर ऑयल विच इज द रिचेस्ट सोर्स. तो सबसे रिचेस्ट सोर्स है विटामिन डी का, वो कॉड लिवर ऑयल. इसके साथ आप विटामिन डी के और भी टैबलेट्स ले सकते हैं. यू कैन ईट चिकन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल विच विल बी यूजफुल इन. नाउ मिनरल डेफिशिएंसी से आपको अनीमिया हो जाता है, जिसमें आपको आयरन की कमी हो जाती है. सो इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोटीन हेमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल. मेन फंक्शन इस क्या है इसका, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. आप ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करोगे लंग से फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट है सिम्टम्स. पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, दे बिकम पेल. उनका जो एपेटाइट लॉस हो जाता है. एंड हाउ दे फील एग्जॉस्टेड. देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सो द डाइट शुड बी supplemented with green leafy vegetables, pulses, cereal, meat, chicken, beaver, fish. And the daily requirement of iron is 25 mg and care should be taken. आपको proper care करनी चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, स्किल लेवल को मेंटेन करके रख सकते. गोइट्रे, आयोडीन डेफिशिएंसी लीड्स टू दिस डिसीज. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन है थायरॉक्साइन, वो डेवलप हो जाता है. What are its symptoms? So, iodine deficiency causes abnormal enlargement of thyroid gland.
जो आपके नेक रीजन पे होता है, वेर इट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन। आपने देखा होगा बच्चों की जो ये नेक रीजन होता है बहुत फूल जाता है, राइट? प्रिवेंशन एंड control iodized salt should be made a part of diet. Seafood, green leafy vegetables are rich in iodine, right? Intramuscular infection of iodinized oil, with the base being oil from poppy seeds. They can be used. So summary here, the summary is given is vitamin A, retinol. आप ऐसे याद कर सकते हो, विटामिन ए आएगा, ठीक है, आप इसको रट सकते हो, तो रेटिनॉल, राइट? में अक्रेंस कहाँ, कॉर्ड लिवर, किडनी बीन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। इफ वी टॉक अबाउट इफेक्टिवनेस, नॉर्मल ग्रोथ फंक्शन होगा, प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, आई, लेग ग्रोथ रुक जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस जैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। विटामिन बी जैसे थैमाइन, बीट जर्म, होल मील सीरियल्स, पीस, ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीवर डैमेज हो सकता है, इनएफिशिएंसी हो सकती है आपकी बॉडी में, राइट? देन वी हैव विटामिन बी2, दैट इज राइबोफ्लेविन, जिससे आपको मिल्क प्रोडक्ट, मीट, होल व्हीट सीरियल, चीज, आर्ट चिकन, ठीक है, ये सब हो जाते हैं। स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, नेल्स ब्रिटल होने लग जाते हैं, अनीमिया जैसी प्रॉब्लम होती है। देन वी हैव विटामिन बी6, दैट इज पायरिडॉक्साइन, ये आपको बनाना, नट्स, होल मील प्रोडक्ट्स, ईस्ट, चिकन, यहाँ देखने को मिलता है। लोगों को ट्रैवल सिकनेस आती है, जैसे वो कार वगैरह में जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, राइट? सो देन इज विटामिन बी12, कोब्लामिन, जो आपका चिकन लिवर में होता है, यॉक में होता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक फ्रूट्स में होता है, जो खट्टे फल होते हैं, राइट? विटामिन डी मीन्स कैल्शियम की कमी होती है, तो इसको हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। ये भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या मिल्क प्रोडक्ट तो आपके सब में ज्यादातर आएंगे आएंगे, राइट? विटामिन के, फाइलोडोक्विन, एक्सटिक्स, ये किसके लिए नेसेसरी होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। नाउ समरीज ऑफ मिनरल्स, देखो यहाँ पे कुछ मिनरल्स दिए हैं, जैसे आयरन मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, या फिर जो आपकी मसल्स का जो मेटाबॉलिज्म है, मायोग्लोबिन है, एनर्जी यूटिलाइजेशन, इसके लिए होता है। सोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी हैव कैल्शियम स्ट्रेंथन बोन्स, टीथ एंड इन्वॉल्व्स मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिजेक्शन। देन वी हैव मैग्नीशियम इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसाइज। देन वी हैव पोटेशियम फैसिलिटेट्स मेनी रिएक्शन, जैसे वाटर बैलेंस, नर्व ट्रांसमिशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। देन वी हैव फॉस्फोरस। सो फॉर फॉस्फोरस, यहाँ पे आपका कैल्सिफिकेशन होता है, जैसे आपके टीथ और बोन्स के लिए। जिंक, पार्ट ऑफ इंसुलिन एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट, वुंड हीलिंग, फीटस एंड स्पर्म डेवलपमेंट। इम्यूनिटी, ये एंजाइम एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म को भी प्रमोट करता है। देन कॉपर, नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, पार्ट ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म। देन वी हैव आयोडीन, दैट इज पार्ट ऑफ थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन। देन वी हैव सोडियम, यहाँ पे क्या होता है? एसिड बेस बैलेंस होता है, वाटर का बैलेंस होता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, आपकी जितनी भी मसल्स एक्टिविटी है वो होती है, राइट? So next is your manganese, which is essential for normal bone development activities. Selenium, antioxidant, work with vitamin A, immune system response. क्लोराइड, ये स्टमक एसिड हो गया आपका, ऐसे एसिड बेस बैलेंस हो गए, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। क्रोमियम, इफेक्ट इंसुलिन, एड्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, जो भी बोन्स का फॉर्मेशन होता है, टीथ का, और जो आपके डेंटल कैरीज होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं। सल्फर, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, बायोटिन, थेवाइन और इंसुलिन का पार्ट होते हैं। Now we have completed this chapter. So let's start with the exercise of this chapter. First is multiple choice question. Which one of the chemical substances found in food? Carbohydrates. Fats is too much energy as compared to the same amount of carbohydrates. Next is which of the following provides all nutrients to our body needs, that is balanced diet. A diet which a diet deficiency in carbohydrate as well as protein cause a deficiency disease called Kwashiorkor. Next is dash disease caused by the deficiency of vitamin D, that is rickets. Right? So let's start with the next, that is fill in the blanks.
Dash are the main building materials of cells inside our body. That is your protein. Dash are needed by our body in small amount, vitamins and minerals. The food we eat daily forms our diet. Dash is a broad term which refers to both undernutrition and overnutrition. That is malnutrition. Iodine deficiency leads to disease that is goitre. Now write T for true and F for false statement. टमाटो कंटेन विटामिन सी. देखो खट्टा होता है तो इसमें विटामिन सी होता है. इट्स ट्रू. द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया. इट्स ट्रू. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज गोइट्रे. जब आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है आपको गोइट्रे हो जाता है. इट्स फॉल्स. Now, absence of particular vitamin or mineral can cause deficiency disease. It's true. Roughage is not the part of balanced diet. It falls. It is the part. Now, match the following question. Scurvy deficiency of vitamin C. जब vitamin C की deficiency होती है स्कर्वी हो जाती है. vitamin D rickets, right? Anemia, iron, goitre, iodine, marasmus, carbohydrates and proteins. Right? Next, start with a subjective type question. Short answer question. What are nutrients? ठीक है, आपको बताना न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. Name the major nutrients in our body: carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals. List the various types of vitamins: vitamin A, B, C, D, E, K. And what is roughage, right? And then what is malnutrition? So what are the major function of protein? Major function क्या है protein का हमारी body में? Now long answer type question. List various types of nutrients and write the function of each. आपको various types of nutrients लिखने हैं, उनके function लिखने हैं. What is balanced diet and write the components of balanced diet. What are vitamins and why are they important for us? ठीक है, vitamins होते क्या हैं और हमारे लिए important क्यों हैं? Why is water very important? वाटर ज्यादातर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है पानी में. So next we have what are deficiency disease and you have to write 5 vitamins deficiency, 3 mineral deficiency disease. Now it's first milk is a complete food that you have to do yourself. Now we have completed this chapter. Hope you understood. We will meet in next class. Thank you.